Hi friends, I'm Anand Panchbhai at Engineers Classes, and today we're going to deal with the next topic. Not exactly the next topic. We are going to deal with some final examples in chapter number 3, that is motion in one direction or motion in a straight line. We've got a very beautiful question in front of us, that the v versus t graph of a particle moving in a straight line is shown in figure. Fine. Obtain the distance traveled by the particle from A, t is equal to 0 to t equal to 10, t equal to 0 to t equal to 10, and b, t equal to 2 seconds to t equal to 6 seconds. Fine. यहाँ पे ध्यान, ठीक है. दो क्वेश्चंस अपने पास है. The first one is a very easy question. Distance traveled by the particle from 0 to 10 seconds is very easy to calculate, because I know that if the v versus t graph is given, you know that the area under the curve will give me the value of total distance traveled. Yes or no? Fine. So I can say that in this case we are having the area under the curve. This is v versus t graph. Area under the curve, we can say it is half multiplied by 10 multiplied by 12. So we'll be having half multiplied by 10 multiplied by 12. Half multiplied by 10 multiplied by 12. So we'll be having 60 meter जितना distance it will be covering in 0 to 10 seconds. पता चला कि नहीं पता चला? But now this is not at all the question that I wanted to I wanted to explain. The question is this: t equal to 2 seconds to t equal to 6 seconds. Fine. t equal to 2 seconds to t equal to 6 seconds. तो वो करेंगे कैसा? ये ऐसा करेंगे तो this will come in the board, right? नहीं आया. अल्लाह. नहीं सिलेक्ट हुआ, कोई नहीं. अभी 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 होगा. अभी भी नहीं हुआ, कोई नहीं. आई विल ड्रॉ इट. अच्छा हो गया है. चलो. सो लेट अस सी. ओह गंदा हो गया ये तो. कहाँ गया? चलो. सो वी आर हैविंग दिस ग्राफ 0 से लेके 10 seconds तक. फाइन. एंड दिस इज हाउ वी हैव. दिस इज 5 and this is 12. This is given to me. This is 12. This is 12. This is 12. ठीक है. अभी ऐसा पूछा है कि t is equal to 2 seconds से t is equal to 6 seconds. t is equal to 2 seconds से t is equal to 6 seconds. So we can say that by t is equal to 2 seconds से इससे ही करते हैं. t is equal to 2 seconds तो यहाँ पे कहीं पे आएगा 2 seconds. फाइन. एंड t is equal to 6 seconds यहाँ पे कहीं पे आएगा. पता चला कि नहीं पता चला? So this is how it will come and this is how it will come. पता चला कि नहीं पता चला? ये क्लियर? फाइन. तो इतने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? फाइन. सो वन वे, एरिया अंडर दिस कर्व, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. तो तुझे उसके लिए क्या चाहिए? तो तुझे उसके लिए ये पॉइंट कौन सा है वो चाहिए, ये पॉइंट कौन सा है वो चाहिए, ये पॉइंट 12 है वो मुझे पता है, पर ये दोनों पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे. ये दो पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे. दिस इज आवर वेलोसिटी. यस और नो? फाइन. ठीक है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस एग्जांपल को? क्या करेंगे? किस तरह से यहां का डिस्टेंस मिलेगा? इतना अंदर वाला डिस्टेंस कैसे मिलेगा? ये वाला
इतने टाइम के लिए डिस्टेंस कैसे मिलेगा? यस again, come again. What am I supposed to do? V is equal to u plus 80 I'll use. Acha, do I have the value of V? What is the value of V? 12. Final velocity. Okay, what is my initial velocity? So this point. Okay. Then T I also know 5. T 5 na? बराबर. हाँ बाद में क्या करेंगे? I'll get acceleration. बाद में so अभी v square minus u square which is equal to 2ax और s whatever x is the distance traveled right. तो v square कितना रखने का? यानी 12 रख v is equal to 12 रखने. u कितना रखने का? 0 मतलब you are starting from here right. Okay and you are terminating at this point right. तो मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो मुझे चाहिए. हाँ तो क्वेश्चन पता चला. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट. यानी 2 सेकंड से 6 सेकंड तक का डिस्टेंस चाहिए. 2 सेकंड से 6 सेकंड का डिस्टेंस मिला मुझे? नहीं मिला. 2 मिनट. हाँ यू आर राइट. दैट इज व्हाट वी कैन डू. शी इज हैविंग अ वेरी करेक्ट पॉइंट कि पहले 6 सेकंड तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं और बाद में उसमें से 2 सेकंड्स तक का डिस्टेंस सबट्रैक्ट करते हैं. यू कैन गेट इट. पर वो कैसे फाइंड करने का 6 सेकंड्स तक का? क्योंकि यहां से यूनिफॉर्म नहीं है. देखो ये कम हो रहा है वेलोसिटी. मतलब ये एक्सेलरेशन जो तुझे मिला यहां पे दैट एक्सेलरेशन यू कैन नॉट यूज ओवर हियर. यस और नो? पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? यहां पे वेलोसिटी बढ़ रहा है. इट इज एक्सेलरेटेड मोशन. बेटा यहां पे वेलोसिटी कम हुआ है. डी एक्सेलरेटेड मोशन. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? तो सिंसियर हो गया बेटा. अच्छी बात है. आई अप्रिशिएट दैट. पूमा की कसम. चलो सो पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? एनीथिंग? कैसे करेंगे? What about this part? Yes. वो हो सकता है. हाँ कैसे जुगाड़ करेंगे 5 to 6 का? हाँ नहीं देखा. अच्छा है. कितना होगा 1 सेकंड का रिटार्डेशन? रिटार्डेशन भी उतना ही है ऐसा? हाँ तो सेम होगा. थोड़ा करके कुछ नहीं. दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइस. फाइन. तो चलो पहले लॉजिक समझते हैं. व्हाट विल वी डू एंड देन लेट अस अप्लाई दोस थिंग्स. ठीक है क्या क्या कर सकते हैं? लेट अस सी दैट. चलो सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द सॉल्यूशन. ओके हियर वी आर हैविंग दिस थिंग. 2 सेकेंड से 6 सेकेंड तक का हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना है. फाइन. ओके व्हाट विल आई डू? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो दिस एक्सेलरेशन. हाउ? सो दिस इज डेल्टा वी, दिस इज डेल्टा टी. So delta v upon delta d, the slope itself will give me the value of acceleration. So no need to put everything in the equation. You can say that the slope of this line, suppose put this as O, A and B. So the slope of line OA will give me the value of acceleration during 0 to 5 seconds. Yes or no? ये किसको नहीं पता चला?
ये किसको नहीं पता? O से A तक का जो स्लोप होगा, दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ. फाइन, V वर्सेस T के ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन. याद आया कि नहीं आया? सो वी हैव गॉट दिस थिंग. सो आई कैन से दैट एक्सेलरेशन OA, फाइन, दैट इज 0 to 5 seconds. फाइन, 5 seconds. फाइन, एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन which is equal to slope. It is A, this is suppose C, so I can say that delta y by delta x, so AC divided by OC. AC कितना है? 12. This is 5. पता चला कि नहीं पता चला? So 24 by 10, that is 2.4. So acceleration हो गया 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइन, इन बिटवीन 0 to 5 seconds. इसका स्लोप है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 12. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 5. पता चला? सो दिस बाय दिस, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स विल गिव मी द स्लोप. पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर? फाइन, ओके. सो वी हैव गॉट 2.4 ओवर हियर. कोई डाउट इसके अंदर? मुझे एक्सेलरेशन मिल गया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट डी एक्सेलरेशन. फाइन, सो भी पीछे की लाइट्स यहां से चालू हो रही है ना? चालू करनी है बेटा लाइट्स, ये वाली लाइट्स. यस, फाइन. So we have got acceleration which is equal to 2.4 meter per second square. Now let's talk about this AB line. For AB, again the slope will be what? Delta y by delta x. पता चला कि नहीं पता चला? Fine, delta y by delta x. तो if this is acceleration, speed बढ़ रहा है, so ये चढ़ने वाला स्लोप है, ये उतरने वाला स्लोप है. उतरने वाला स्लोप नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा. पता चला? फॉर यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं, फॉर लाइन ए बी वी कैन से दैट द स्लोप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप. फाइन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप. सो ए इज इक्वल टू -2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सर माइनस सेम वैल्यू कैसे आई? अरे देखना, डेल्टा वाई कितना है? 12. डेल्टा एक्स कितना है? 5. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, और डी एक्सेलरेशन है. फाइन, अच्छा, पर सर नेगेटिव कैसे आएगा? आप एग्जैक्टली ऐसे नेगेटिव कैसे बोल सकते हो? आपको पॉइंट्स रखने के. देख यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है? 10. y कोऑर्डिनेट कितना है? 0. बराबर. पता चला ना? y कोऑर्डिनेट माने वेलोसिटी. क्लियर? यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है? 5. फाइन, और y कोऑर्डिनेट कितना है? 12. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो आई कैन से दैट y2 minus y1 upon x2 minus x1. फाइन, y2 minus y1 upon x2 minus x1 ऑटोमेटिकली आ गया नेगेटिव. पता चला कि नहीं पता चला? याद भी नहीं रखना है, मैथमेटिकली आ गया. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट इसके अंदर? फाइन, पक्का डन? पक्का डन सबको? ओके. सो मुझे दो एक्सेलरेशन, पर सर एक्सेलरेशन का जरूरत क्या है? फाइन, क्या करेंगे एक्सेलरेशन को लेके? वेलोसिटी फाइंड करना है मुझे. यहां पे प्रॉब्लम क्या थी? ही टोल्ड मी सर यहां 0 से उसका डिस्टेंस मिल गया ना, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2x. पर अगर मुझे यहां का वेलोसिटी पता है v1, देन अपने क्विक हील कर सकते हैं. फाइन, तो यहां का वेलोसिटी अगर मुझे पता है, सो आई कैन पुट इट. फाइनल वेलोसिटी अगर यहां का वेलोसिटी मुझे पता है, सो आई कैन यूज इट. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन, या तो फिर मैं ऐसे बोलूंगा, यहां का वेलोसिटी पता चल गया तो यहां से यहां तक का सेटिंग कर लिया. डन. फाइन, बाद में यहां का वेलोसिटी पता चल गया तो यहां से यहां तक का सेटिंग कर लिया. क्लियर? क्योंकि एक्सेलरेशन भी पता है उतने टाइम के लिए. पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और मुझे दो अलग ही करना पड़ेगा क्योंकि यहां से एक्सेलरेशन चेंज होता है. डन. फाइन, v² minus u² which is equal to 2ax. if I use, I have to use the value of acceleration. तो 5 के बाद तो चेंज हो जाता है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेगेटिव हो जाता है, डी एक्सेलरेट हो जाता है मोशन. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फाइन, सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी v1, और v1 मिलने के बाद इनिशियल वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी 12 which is equal to 2ax. a is equal to 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मुझे यहां पे क्या मिला? x1 मिला.
पढ़ा बेटा, यहां पे ध्यान दे। तो मुझे यहाँ पे x1 मिला, यहां तक का एरिया। बाद में मैं क्या फाइंड करूंगा, मैं यहां का वेलोसिटी फाइंड करूंगा, से v2 फाइन। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना 12, तो इनिशियल वेलोसिटी 12, फाइनल वेलोसिटी v2, फाइनल वेलोसिटी v2 विच इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू -2.4 मल्टीप्लाइड बाय x2। तो मुझे x2 मिला। पता चला कि नहीं पता चला? आई गेट बोथ द थिंग्स फाइन। मुझे पहला भी मिल गया और मुझे दूसरा भी मिल गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फाइनल टोटल डिस्टेंस इज व्हाट, x1 प्लस x2। डन हुआ कि नहीं हुआ? फाइन। अभी उसको सॉल्व करें, अभी उसको सॉल्व करें, एक्सेलरेशन मिल गया, लॉजिक अपने दिमाग में सेट हो गया। फाइन, ठीक है। अच्छा, अभी भी क्वेश्चन है कि v1 v2 मिला तब जाके ये चीज होगी कि नहीं होगी? फाइन, तब जाके ये इक्वेशन यूज करना है। अभी क्वेश्चन क्या है, v1 और v2 को ढूंढने का है। क्लियर हुआ? तो v1 v2 कैसे मिलेगा? सो v1 इज वेरी सिंपल टू फाइंड। फाइन, v1 is very simple to find. So for v1 we can say, for v1 अपने ऐसा बोल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v1 बराबर, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v1, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स। पता चला कि नहीं पता चला? इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v1, एक्सेलरेशन 2.4, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक्सेलरेशन 2.4, टाइम कितना, यहां पे ध्यान, टाइम कितना 2 सेकेंड्स। अभी नहीं लिखना है, मैं पढ़ा रहा हूं तब नहीं लिखना है। फाइन, नहीं तो फिर ऐसा होगा, ऐसा। समझ पड़ा? फाइन, ओके। जस्ट टू गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि नहीं लिखना है, ठीक है? फाइन, ओके। सो वी हैव गॉट दीज थिंग्स, these are done in our brain now. Fine. अभी देखो, v is equal to v0 plus at, v is equal to u plus at. This is what we know, v is equal to u plus at. तो इसमें मुझे v मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना है, v1 जितना है। फाइन, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, फाइन, एक्सेलरेशन कितना है 2.4, टाइम कितना है तो बोले 2 सेकेंड्स। फाइन, सो वी कैन से दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 कितना हो गया 4.8 हो गया। तो मुझे वेलोसिटी मिल गया, v1 का वैल्यू कितना हो गया 4.8 मीटर पर सेकेंड। v1 का वैल्यू कितना हो गया, v1 का वैल्यू कितना हो गया 4.8 मीटर पर सेकेंड। मैंने ढूंढ लिया। अल्लाह, क्लियर हुआ सबको? पक्का डन सबको? फाइन, सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ v1 विच इज इक्वल टू 4.8 मीटर पर सेकेंड्स। डन, फाइन, ओके। ये होने के बाद यस, अभी ये मेथड समझ लेते हैं। फाइन, ठीक है, बाद में हर एक मेथड को करेंगे। चलो, सो दिस इज डन, मुझे v1 मिल गया। अभी v1 एक बार मिल गया तो ये और ये यूज करके इनिशियल वेलोसिटी v1 जितना, फाइनल वेलोसिटी 12 जितना, एक्सेलरेशन 2.4 जितना, तो मुझे x1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अल्लाह, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सी, ये लॉजिक सेट होना चाहिए, बाद में सॉल्व करके लाना, इट्स अ मैथमेटिक्स, वो कोई भी कर सकता है, पर कैसे कैसे इक्वेशन को सेट कर रहा हूं वो समझना है हमें, ध्यान यहां पे देना है, ठीक है? चलो, सो वी हैव गॉट दिस थिंग। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको x1 ढूंढ लेते हैं। तो चलो x1 ढूंढते हैं। x1 के लिए, नाउ फॉर x1 वी कैन से दैट अपने पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u इज इक्वल टू नाउ 2.4, अरे 4.8। समझ पड़ा? सर ये तो v1 आया ना। अरे तुझे अब नाउ यू हैव टू सी द बिगर पिक्चर, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी v1 मतलब 4.8। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो v1 इज इक्वल टू 4.8। बाद में अच्छा इक्वेशन कौन सा है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। फाइन, ओके। तो हम ऐसा बोलेंगे फॉर x1 इज इक्वल टू u, इतना आ गया। बाद में फाइनल वेलोसिटी v कितना आ गया 12, और a कितना आ गया 2.4। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? सो नाउ आई विल राइट v square minus u square which is equal to 2a into x1. So x1 which is equal to final velocity कितना है 12 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 4.8 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2, एक्सेलरेशन कितना है
ना 2.4 बराबर, तो ये 4.8 हो जाएगा. फाइन, विल यू प्लीज कैलकुलेट दिस फॉर मी. चलो 144 माइनस 4.8 का स्क्वायर कितना होता है? 23.04 डिवाइडेड बाय 4.8. कितना? सो 25.2 मीटर इतना वो ट्रैवल करेगा. कहां से कहां तक? आई मीन किस टाइम से किस टाइम तक? सो 2 सेकेंड से 5 सेकेंड तक उसने इतना ट्रैवल किया. अला पता चला सबको ये चीज? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर? पता चला? पता चला सबको? फाइन, ओके, सो वी अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट्स से हमें क्या चाहिए? हमें वापस u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर करना है, पर मुझे ये वेलोसिटी v2 चाहिए. बराबर, फाइन. सो दिस बिकम्स माय इनिशियल वेलोसिटी, दिस बिकम्स माय फाइनल वेलोसिटी. क्लियर? दिस बिकम्स माय इनिशियल वेलोसिटी, दिस बिकम्स माय फाइनल वेलोसिटी. व्हाट इज द टाइम? 1 सेकेंड. पता चला कि नहीं पता चला? 1 सेकेंड में वो कितना रिटार्ड हुआ? डन. पता चल रहा है ये चीज? ठीक है. 2.4 जितना रिटार्ड होगा, बराबर. सो 12 में से 2.4 चला जाए, उतना बचेगा. बराबर, पता चला है 10.6 जितना बचना चाहिए उतना वेलोसिटी होना चाहिए. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो लेट अस डू इट. सो वी कैन से दैट u पता है 12, v इज इक्वल टू v2. ढूंढना है फाइनल वेलोसिटी. a माइनस 2.4, t कितना है? 1 सेकेंड्स. पता चला कि नहीं पता चला? अल्लाह, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? सो वी हैव गॉट, अच्छी बात है बेटा. पर कुछ नहीं, अभी यही करना है. अभी ये वेलोसिटी ढूंढना है. उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी ये, फाइनल वेलोसिटी ये, डी एक्सेलरेशन माइनस 2.4. बराबर, खत्म. तो उसको डाल के अपने आंसर निकालते. चल, तो विल से दैट कि एक्सेलरेशन कितना है अपना? माइनस 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 12 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी ढूंढना है v2. बराबर, और t कितना है? 1 सेकेंड. बराबर, तो इसको यूज करके v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. तो विल बी हैविंग u विच इज इक्वल टू 12 माइनस a इज इक्वल टू 2.4. मैंने माइनस ऑलरेडी बाहर निकाल दिया है. t इज 1 सेकेंड, तो विल बी हैविंग 9.6 सॉरी गाइज, 9.6 मीटर पर सेकेंड्स. फाइन, तो मुझे यहां का वेलोसिटी मिल गया 9.6. फाइन, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है. फाइन, सो आई कैन से दैट v square minus u square which is equal to 2ax2. फाइन, so x2 which is equal to v square. फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी 9.6 the whole square minus initial velocity 12 the whole square. Find 2 multiplied by minus 2.4. समझ पड़ा? कितना हो गया ये फाइनल आंसर? दिस विल बिकम माइनस 4.8. ऊपर का क्या होगा? कितना? 10.8. फाइन, 10.8 आ गया. चलो, तो विल बी हैविंग 10.8 मीटर. सो x2 इज दिस. अभी x1 मुझे मिल गया है. फाइन, कितना है अपना x1? सो x1 25.2 और ये 10.8. सो आई कैन से दैट फाइनली विल बी हैविंग, सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2. कहां से कहां तक? t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेके t2 विच इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स तक. फाइन, सो विल बी हैविंग x1 कितना है? 25.2 प्लस 10.8 कितना आया? 36 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट इसके अंदर? और यूनिफॉर्मली कम होगी.
तो मुझे अलग मेथड से करके दिखाओ ना, चलेगा। हाँ बट ये तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, इसलिए अगर टाइम चेंज हो जाएगा, कुछ अलग चीज आ जाएगी, तो इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग नो। पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर? वो तो सही बात है कि यूनिफॉर्मली वो बढ़ रहा है, सो इट इज वेरी सिंपल, 2 सेकंड के बाद इतना वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर? एक्सेलरेशन पता है तो डन, बट यू हैव टू यूज फॉर्मूला नो एटलीस्ट फॉर दैट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अल्टीमेटली तो दिमाग में भी फॉर्मूला ही यूज कर रहा है ना, अल्टीमेटली क्या कर रहा है, यू यूजिंग अ फॉर्मूला। ठीक है, फाइन, चलो लिखो इस चीज को। दिख रहा है? ये ऊपर वाला तो वैसे भी बाद में लिखना है, नीचे वाला खत्म करो, ऊपर वाला खुद से कर सकते हो। चलो 3 मार्क्स का। हाँ तो पढ़ने के